Hello learners, welcome to this session. Another 2 minutes left. We'll start this session after just 2 minutes. And beforehand, I just want to say a few lines. First of all, I have started this group for MA Education Learners. The name of the group is IGNOU MA Education Learners. I started on 19th of May. And today is the third day. Within this short duration of time, only 3 days, by this time we have more than 500 members now, 525 what I saw, the latest one. And my request to all my learners that you know the group link now. What you can do, जिनको आप जानते हैं, जो MA एजुकेशन इग्नू का जो लर्नर है वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जिनको आप जानते हैं, ये ग्रुप का लिंक जो है उसको आप आसान करिए, उनको शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इसमें जुड़ जाए और एक ही प्लेटफॉर्म में हम संवाद करें. ठीक है, बीच बीच में जो जो इम्पोर्टेंट लेसन है तो मैं कोशिश करूँगा इस पैंडमिक टाइम में या आफ्टर दिस पैंडमिक ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर्स हम कोशिश करेंगे आपके साथ सीधा जोड़ने के लिए. हमारा यह प्रयास है, तो ज़रूर आप शेयर करिए. और आई हैव वन यूट्यूब चैनल. ओके, तो मेरे यूट्यूब चैनल में अभी मोर देन 2000 सब्सक्राइबर है एंड मोस्ट ऑफ देम आर आवर लर्नर्स, MA एजुकेशन लर्नर्स. मैं चाहूँगा जब एक ऑनलाइन सेशन यहाँ हो रहा है, फेसबुक लाइव सेशन हो रहा है, तो ये वीडियो जो है ये दोनों फेसबुक प्लेटफॉर्म में भी चलता है और एट द सेम टाइम आई ऑल्सो शेयर इट इन माई यूट्यूब चैनल. तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी लर्नर्स को, MA एजुकेशन लर्नर्स को, जो मेरा यूट्यूब का एक पार्ट है, यूट्यूब का मेंबर है, मेरे चैनल का जो मेंबर है, जो मेरा लर्नर है, डायरेक्ट लर्नर मेरा है, तो ज़रूर ये फेसबुक का जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है इग्नू MA एजुकेशन लर्नर्स, इस ग्रुप का लिंक आपके पास है. ठीक है, तो ज़रूर इसमें भी आप जुड़ जाइए सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेशंस. सो फ्रेंड्स, नाउ exact the time is 4 p.m. As per our planning, today we will discuss another topic. So before discussing the topic, let me to first of all welcome to all our learners and all the participants who are at present with me and who are watching this Facebook live session. I, Dr. Niradhar De, faculty member, School of Education, Indira Gandhi National Open University, welcome you all on my personal behalf and on behalf of my school, that is School of Education, Indira Gandhi National Open University. So friends, today we are going to discuss another important topic that's come under the research methodology. Okay, and the title of today's topic is Research Methodology Part 2, that is Philosophical and Historical Research. So today we'll discuss about the concept of philosophical research, the concept of historical research, especially when we conduct research in education. So how to use philosophical method and historical method. तो आज का जो हमारा मेजर फोकस पॉइंट है, डिस्कशन पॉइंट है, ये दोनों मेथड हम कैसे यूज करें जब हम एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं. मैं भी ए मास्टर डिसर्टेशन, मैं भी
dissertation at your MPhil or even if at the PhD level also. ठीक है, तो the concept and processes of doing research, it may be master, it may be PhD, ये सेम है. ठीक है, तो मास्टर लेवल में थोड़ा सा छोटा एक माइक्रो लेवल स्टडी आप करते हैं, और जैसे आप आगे बढ़ते हैं PhD लेवल का जब स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्ट जब आप करते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, तो प्रोसेस तो सेम रहता है पर बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाता है. ठीक है, हो सकता है ज़्यादा वेरिएबल्स आप ले लें, नेचर ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एरियाज ज़्यादा आप कवर करते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब हम टॉपिक को जाएंगे. और फ्रेंड्स, लेट मी टू से दैट दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 2 different courses of MA education program. First course is MESP 001. The course title is dissertation, and you have studied this course MESP 001 dissertation. This is a practical oriented course. This is a project oriented course. You have studied this course in the second year of MA education program. So the learners who are at the second year now, they might be doing this research, okay, or they might be pursuing this course. And in the first year of MA education program, one course is there, one very important course is there, that is MES 011 educational research. Okay, so the theoretical part you will get from this course, from the first year course, that is MES 011 educational research. And in the second year, the theoretical construct, the theoretical knowledge, the theoretical concept, the theoretical understanding for conducting एन एजुकेशनल रिसर्च, जो MES 011 एजुकेशनल रिसर्च कोर्स पढ़ के फर्स्ट ईयर में जो नॉलेज आप एक्वायर किया है, जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिला है, तो फर्दर सेकेंड ईयर में उसे प्रैक्टिकल में आपको कन्वर्ट करना है. आपको एक प्रोजेक्ट करना है कि डिसर्टेशन करना है, एक शोध आपको करना है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो टॉपिक हमने आज लिया है, मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ क्योंकि जो लर्नर्स हमारा है मटेरियल तो हम इंग्लिश में डेवलप किए हैं, पर जो लर्नर्स है they are free to write their assignment in Hindi, they are free to write their term and examination in Hindi, they are free to prepare their research proposal in Hindi, and they are also free to prepare their dissertation report in Hindi. ये हिंदी में लिख सकते हैं. तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल मैंने बात करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इस सेशन का फायदा ले, इस सेशन का बेनिफिट्स ले. ठीक है, तो ये दोनों कोर्स जो मैंने बताया, MESP 001 डिसर्टेशन, जो इग्नू MA एजुकेशन प्रोग्राम का सेकेंड ईयर का एक पार्ट है, कोर्स है जो 10 क्रेडिट का है, और MES 011 एजुकेशनल रिसर्च जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, ये दोनों कोर्स को डील कर रहा है आज का हमारा टॉपिक. सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कशन करते हैं कि आज के टॉपिक में क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या फोकस पॉइंट है जो कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू विल परस्यू ए डिसर्टेशन. लेट अस गो फॉरवर्ड. So just to recapitulate, because मेरा यह एक अभ्यास है, एक हैबिट है कि जब मैंने एक नया सेशन लेता हूँ तो इससे पहले क्या मैंने डिस्कशन किया जरूर एक नज़र में उसके ऊपर डालता हूँ. ओके, उसे मैं एक रिकैपिचुलेट करता हूँ, पुनरावृत्ति करता हूँ कि क्या क्या हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किए थे. सो लेट मी टू से फ्रेंड्स, लास्ट सेशन आई हैड टेकन ऑन 20th of this month, 20th of May, दैट इज एग्जैक्टली at 4 PM. ठीक है, वहाँ हम डिस्कशन किए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 1, एंड स्पेसिफिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, डिफरेंट मेथड्स दैट वी यूज इन ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल मेथड्स के ऊपर है जब एजुकेशनल स्टडी हम करेंगे. बट लेट मी टू से, ये जो दो आपके स्क्रीन में अभी देखिए, दो डॉक्यूमेंट विजिबल है, एक MES 016 एजुकेशनल रिसर्च एंड अदर इज द हैंडबुक ऑन डिसर्टेशन वर्क. एंड आई एम डेड श्योर दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दीज 2 documents. ओके, इट इज अवेलेबल इन द ज्ञान कोश पोर्टल ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. ठीक है, एक वीडियो लेसन मैंने बनाया स्क्रीन शेयर करके, जो कि अभी इग्नू ऑफिशियल फेसबुक पेज में अभी ये वीडियो चल रहा है. ठीक है, कल ये अपलोड हुआ है. उसमें यदि वो वीडियो को आप देखेंगे आपको डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा. यू कैन फाइंड आउट दैट वेयर दिस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट. ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इट में बी प्रोग्राम गाइड, इट में बी डिसर्टेशन मैनुअल. ठीक है, ये सभी ज्ञान कोश पोर्टल में है. इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द मटेरियल, देन माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल
please go through the eGyan course portal and download these 2 documents, and you will find that these 2 documents is very much helpful for pursuing your dissertation work. From this course MES 016, you will find a detailed theoretical understanding, and from this course, that is Handbook on Dissertation Work, you will find that how to pursue the dissertation work, how to prepare a research proposal, then accordingly how to conduct a study. So what are the major components that one is supposed to consider while he or she conducting the research in education. ठीक है, हमने क्या किया, we have taken few examples, few title, few research title, then accordingly उसी title के अनुसार जो डिफरेंट कंपोनेंट है रिसर्च का, वो कंपोनेंट को हमने एक्सप्लेन किया कि उस टाइटल के अनुसार रिव्यूज कैसे होगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे आप स्टेट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कैसे आप लिख सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन कैसे आपका होगा, सैम्पलिंग कैसे होगा, कौन से सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करेंगे, डाटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स आप यूज करेंगे, और फॉर द डाटा एनालिसिस कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके करेंगे. ठीक है, तो हमने कोशिश किया ये हैंडबुक ऑन डिसर्टेशन वर्क में टू प्रोवाइड ए टाइप ऑफ first hand information to the learners that how they will pursue, how they will conduct this dissertation work, as this is a practical oriented course. So friends, चलिए आगे बढ़ते हैं. just 1 minute, ये स्लाइड मूव नहीं कर रहा है. I'm just yes. So friends, today's discussion point, I have taken 3 major discussion points. First is to understand or to discuss about the concept of philosophical and historical research. What is the concept of it? What is a philosophical research? And what is a historical research, especially in education. Then further we will discuss about the steps and the processes that we follow, that we use for conducting and designing philosophical and historical research. ठीक है, philosophical research conduct करने के लिए क्या step हमने follow करेंगे, और accordingly for conducting historical research क्या step हमने follow करेंगे. Then further tools used and nature of data received in philosophical and historical research. So what are the different tools we supposed to use for conducting philosophical and historical research. ठीक है, और nature of data क्या होगा, it may be primary data, it may be secondary data. So this will be the discussion point, major discussion point. Starting from the concept, we will discuss the steps, at the same time the nature of the data and the tools that we supposed to use for conducting the study. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, please. There is some difficulties in moving the slides. Anyway, so just to recapitulate the detailed component of research that we follow for conducting educational research. First of all, the components are selecting a research problem. This is the first point. Then second, review of related literature. Okay, first we select a problem, that what type of problem that we select for conducting our dissertation work. Then the review of related literature means the study that have been earlier conducted. We have to analyze those studies to know that what have been done earlier and what has not been done, so that by analyzing the review of related literature we can find out the gap of the study. ठीक है, ये study का क्या gap है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, and being a researcher,
what new things that you are going to do and how you can justify that your study is a new study. ठीक है. So for bringing certain innovation to your research, you have to analyze the review of related literature, and that will also provide a type of guide to the researcher. Already I have discussed about the research problem. Then in my earlier lesson, video lesson, I have discussed about the review of related literature. Then further is research question. Okay, so how to write the research question. So as a researcher, you might be understanding that when you are going to conduct a study, जब एक अध्ययन करने आप जा रहे हैं, एक शोध कार्य आप करने जा रहे हैं, जरूर कुछ शोध प्रश्न आपके मन में होगा. ठीक है. There might be certain research questions in your mind, and you will be trying to get the answer of those research questions. So by adopting a process, by conducting a detailed research, your attempt will to get the you can say get the findings or the answer of the research question. So that's why research question भी इसका एक component है. Then objectives, as per the research question, on the basis of the research question you have to state the objectives. Then you have to state the hypothesis also. ठीक है. If there is the need of hypothesis in your research, if you are going to find out a type of association between two variables, or if you are going to find out a type of significance difference between two groups, or significance difference between few frequencies, then you can also state certain hypothesis, because without using the statistics you cannot do it. Okay, so you have to state the hypothesis, and many a time without stating a hypothesis you can also conduct your study. If it is a type of explorative type of research, then if no researches have been conducted earlier and you are not getting any idea about any type of assumption, any type of hypothesis, okay, so what you can do without stating the hypothesis, you can also conduct your research. So बिना परिकल्पना में आप शोध भी कर सकते हैं. वो एक्सप्लोरेटिव स्टडी होनी चाहिए. यदि उसके ऊपर अध्ययन नहीं हुआ है और आपको यदि पर्याप्त बेस नहीं मिल रहा है, का आधार नहीं मिल रहा है कि इस प्रकार का स्टडी कैसे हुआ है. फर्दर वेरी क्विकली, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड. आपका रिसर्च टाइटल में जो नया पॉइंट्स आप यूज किए हैं, ठीक है, तो उसे ऑपरेशनल आप डिफाइन करेंगे. जो नया टर्म, नया वर्ड आप यूज किए हैं, उसे ऑपरेशनल आप डिफाइन करेंगे कि ये सब टर्म जो है वो कैसे यूज हुआ है आपके स्टडी में. ठीक है. देन फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपका स्टडी को स्टडी इज ऑलवेज वास्ट इन नेचर, लार्ज इन नेचर. तो आपका स्टडी को कैसे आप डिलिमिट करें, एक वास्टनेस से रिसर्चेबल फॉर्म तक कैसे उसे सीमांकन आप करें. ठीक है. तो अध्ययन को सीमांकन आप करेंगे. देन फर्दर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा रिसर्च मेथड्स आप यूज करें, जो कि हमारा आज का जो डिस्कशन है, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर. एक एक करके हम मेथड्स डिस्कशन कर रहे हैं. सो आज का हमारा डिस्कशन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी है. ठीक है. हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर रिसर्च मेथड्स आप यूज करेंगे आपका अध्ययन करने के लिए. देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है. सो जो डाटा आपको मिला, यू हैव टू यूज द टूल्स. ठीक है. तो कुछ टूल्स यूज करके आप डाटा कलेक्शन करेंगे. सो डाटा कलेक्शन करके जो डाटा आपको मिला, सो हाउ यू विल एनालाइज इट, by using what techniques, by using what statistics you have to analyze the data. Okay, so that you have to explain. Then further you have to interpret the data to get the findings. So data को आपको interpret करना पड़ेगा, descriptively interpret करना पड़ेगा, उसका narrative develop करना पड़ेगा यदि एक qualitative study है. ठीक है. और डिफरेंट टेबल एंड फिगर में देकर उसको एक सिस्टमेटिकली आप उसे प्रेजेंट करेंगे डाटा को. देन आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा यू विल गेट द फाइंडिंग्स. ठीक है. फाइंडिंग्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन. तो जो फाइंडिंग्स आपको मिला और जो रिजल्ट आपको मिला, उसको फिर आप उस रिजल्ट को आप डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. ठीक है. जो रिव्यूज आप पहले एनालिसिस किए हैं, विश्लेषण किए हैं रिव्यूज को, तो क्या गैप आपको मिला था और आपके स्टडी में क्या फाइंडिंग्स आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका एक डिस्कशन आप करेंगे. ठीक है. सो दैट विल बी द क्रक्स ऑफ योर स्टडी. विदाउट डिस्कसिंग द रिजल्ट देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ द रिसर्च. ठीक है. तो रीडर्स को पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आपको मिला, इस प्रकार का रिजल्ट आपको क्यों मिला. ठीक है.
और रिव्यूज का कौन सा गैप आप फिलअप किए बाय कंडक्टिंग योर स्टडी। एंड द लास्ट वन इज द रेफरेंसेस। ठीक है, तो इधर द रिसोर्सेस दैट यू हैव यूज्ड, डिफरेंट सोर्सेस, इट मे बी internet, it may be different encyclopedia, it may be books, it may be journals, it may be government reports, it may be you can say different project report, different dissertation, PhD thesis, OER, ठीक है, या MOOCs, जो चीजें, जो resources आपने यूज किया है for conducting this study, then you have to prepare a list of it, and that should be as per the APA style. So friends, these are the components for conducting educational research. Now let us go forward to discuss the research methodology. Here you see research methodology includes 4 different parts here. Population components, population, sample and sampling technique. I have already taken that. You have to define what is the population of your study. Then from the population, how you have deduced, how you have selected an adequate sample. Okay, so ये भी आपको यहाँ explain करना पड़ेगा. Then tools and techniques for data collection. I have already taken a session on population and sample. Probability sample का एक session लिया, non-probability sample का एक session लिया. It is available in the YouTube, in my YouTube channel. At the same time, this is also available in my Facebook and also IGNOU official Facebook page. ये videos सब available है. Then tools and techniques for data collection. So what are the different tools that you supposed to use for collecting data? Okay, ये tools जो है, it may be questionnaire, it may be interview schedule, it may be a type of observation, it may be a type of test, achievement test, intelligence test, creativity test, aptitude test. जो भी आप यूज करेंगे ये that is also part of research methodology. Then further methods of study, particular जो एक मेथड, आज हम philosophical and historical method के बारे में डिस्कशन करेंगे. It's come under the methods of the study and the design and how you will design your study. Then further statistical techniques used for data analysis I have not taken. For after getting the data, how you will analyze the data, what statistical techniques you supposed to use for analyzing the data. Okay, so that we will discuss in another session. So friends, now let us focus upon the method of study. So here you see, just to recapitulate, I have already discussed in my earlier session. Then again, very quickly, let me to just take the name. Methods of the study here. Philosophical research is one method for conducting educational research that we use. Then further descriptive research is also another method that already we have discussed in my earlier session that I conducted on 20th of May. Then further experimental research is another important method that we use for conducting research in education. Then historical research. ठीक है, तो ये जो फिलोसॉफिकल रिसर्च, दार्शनिक शोध एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध, ये दोनों मेथड आज हम डिस्कशन करेंगे. आपको मैंने बता दूं, हिस्टोरिकल रिसर्च जो डाटा हमें प्राप्त होता है मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो डाटा हमें मिलता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मैंने आपको बता चुका हूं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यू हैव टू डू ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, you have to develop a type of experimental design, you have to adopt an experimental design, and you have to conduct an experimental study. So that's why the data that you will get, mostly the data is quantitative in nature. You will get the data in terms of numbers. Okay, so experimental method में quantitative data आपको मिलेगा, and in historical research you will find that mostly the data is qualitative, but there is also the possibility to get the quantitative data, but it is more qualitative and less quantitative. And here descriptive, correlational and experimental study, explorative study or the case study, which is a part of descriptive research, I have already discussed. Here the philosophical research, we conduct a type of philosophical research जो दार्शनिक शोध है, हम इसे करेंगे to know the vision of the great personalities, great educationists, great philosophers, great thinkers. ठीक है, it may be महात्मा गांधी, it may be स्वामी विवेकानंद, it may be टैगोर, it may be जॉन ड्यूई, it may be प्लेटो. उनका जो शैक्षिक दर्शन था, उनका जो विचार था कि करिकुलम कैसे होगा, टीचिंग लर्निंग मेथड्स कैसे होगा, स्टूडेंट्स को हम कैसे पढ़ाए. ठीक है, तो आप देखेंगे वो अपना विचार दिए हैं. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द ड्यूटी एंड रोल ऑफ ए टीचर. ठीक है,
व्हाट शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्कूल, ठीक है, व्हाट मेथड्स टेक्निक स्ट्रैटेजीज शुड बी एडॉप्टेड टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसमें समाहित होगा, मतलब हम विजन स्टडी करेंगे, आदर्श स्टडी हम करेंगे फिलोसॉफिकल रिसर्च के माध्यम से। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च ये कहता है कि वी हैव टू स्टडी, एजुकेशन में जब हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे वी हैव टू स्टडी द डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस ओवर द टाइम, ठीक है। एंशिएंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसे था, मीडिएवल टाइम में कैसे था, बुद्धिस्ट सिस्टम, बुद्धिस्ट पीरियड में कैसे था, और फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हम कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है तब एजुकेशन सिस्टम कैसे था। इट में भी ब्रिटिश टाइम और इट में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब जो पास्ट ऑकरेंसेस है, तो इसी को लेकर एक अध्ययन हम करेंगे। आगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हम कर सकते हैं, पुराना इंस्टीट्यूशंस जो यू कैन से सेंचुरी से अपना सेवा दे आ रहा है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जहां पढ़े हैं, ठीक है, जिनका एलुमिनाई दे आर डूइंग सब्सटेंशियल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके ऊपर भी एक अध्ययन हम कर सकते हैं। दैट में बी ए टाइप ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। देन एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये हिस्टोरिकल स्टडी के माध्यम से हम एजुकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दिस फिलोसॉफिकल रिसर्च। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट फिलोसॉफिकल रिसर्च हम क्यों करेंगे, टू स्टडी द विजन, ठीक है। तो किसी एजुकेशनिस्ट, किसी थिंकर, किसी फिलोसोफर का क्या विजन है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए विजन स्टडी। उनका विजन के बारे में अध्ययन हम करेंगे। चलिए इधर आप देखिए, मेजर कंसर्न ऑफ ए फिलोसॉफिकल स्टडी। एक फिलोसॉफिकल स्टडी का क्या मेजर कंसर्न है। दीज आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन फिलोसॉफिकल रिसर्च। आप देखिए, एक मेटाफिजिकल एक्टिविटी है, नॉर्मेटिव एक्टिविटी है, एंड एनालिटिकल एक्टिविटी है। फिलोसॉफिकल रिसर्च में 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू। एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसॉफी, आप देखेंगे इसका जो शुरुआत है कि नेचर से, यू कैन से नॉलेज से होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉलेज, द रियलिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, यू माइट हैव heard, you might have studied about the concept of metaphysics, epistemology and axiology. Metaphysics is the theory of knowledge. ये knowledge के बारे में कहता है, knowledge generation कैसे होता है, knowledge का concept क्या है, ठीक है। theorization हम कैसे करें किसी एक concept को, ठीक है। एक process adopt करके, that may be a research, एक process adopt करके एक theory हमने कैसे develop करें। और metaphysics कहता है this is the nature of reality, the reality of this world, nature of the universe, you can say nature of the universe, nature of the humankind and nature of the beauty, ठीक है। सो जो नॉलेज है उसका नेचर हम स्टडी करेंगे, उसका रियलिटी हम स्टडी करेंगे। सो ये भी फिलोसॉफिकल स्टडी का जो एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत आता है, हमें इसे समझना पड़ेगा। देन फर्दर वी कैन से दैट द नॉर्मेटिव एक्टिविटी जस्ट लाइक establishing a norm, standard and guidelines. So friends, normative, it has come from the word norm. Norm means a standard. Norm means certain principles, certain laws, certain theories. Okay, so friends, when we talk about philosophical study, it means definitely it talks about certain concept. It talks about certain knowledge base. It talks about certain specific knowledge, certain specific theory. Just like knowledge in science, knowledge in education, knowledge in social sciences, knowledge in language and literature, you will find that the nature of knowledge is different. Okay, the norms and standards used in physics, used in chemistry, used in education is something different. Okay, so that's why this is also another major concern for conducting a philosophical study, that you have to understand the norm, you have to understand the standard. Then further, being a researcher, you should have the analytical skill, because you have to analyze the things, you have to synthesize the things. आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको संश्लेषण करना पड़ेगा, and you have to establish certain argument. किसी एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको sufficient argument देना पड़ेगा. Unless you have a good knowledge base, then you cannot develop a good argument, a logical argument, okay, with certain reasoning,
विथ सर्टन लॉजिक आप दे नहीं पाओगे. सो दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकल रिसर्च demands the argument, demands analyzing the things and synthesizing the things. Then exposition, then underlining assumptions. You can also draw certain assumptions. Okay. So friends, these are the major concerns that we use for conducting the philosophical study. And further, let us try to understand that what are the different areas of philosophical research, especially in education. Education में वो कौन सा areas है जहां हम फिलोसॉफिकल रिसर्च कर सकते हैं. तो बीइंग ए मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन और बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए पीएचडी रिसर्चर, आपके मन में जरूर यह प्रश्न आ रहा होगा कि फिलोसॉफिकल रिसर्च फिलोसॉफी डिसिप्लिन में होता है, जब एजुकेशन में हम करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, किस प्रकार का समस्या हमने ले. ठीक है. सो दैट्स व्हाई लेट मी टू से दैट व्हेन वी यूज philosophical method for conducting educational research, that what should be the nature of the problem, just like studies of educational philosophy or contribution of educationists or the philosophers. I have already said that the great philosophers, the great educationists, it may be Mahatma Gandhi, it may be Tagore, it may be Sri Aurobindo, it may be you can say Swami Vivekananda, or the Western philosophers. You can also take the name of Plato, Aristotle, इमानुएल कांट, जॉन ड्यूई. ओके. तो उनका विचार क्या था, उनके अनुसार, उनके विजन के अनुसार एजुकेशन को कैसे वो कंसेप्चुअलाइज किए थे, उनके हिसाब से करिकुलम कैसे होना चाहिए, कोर्सेस ऑफ स्टडी कैसे होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स शुड बी टॉट इन द स्कूल, एंड फॉर टीचिंग दैट सब्जेक्ट्स what type of methods, techniques should be used, and what type of what's the role of the teacher का भूमिका क्या होनी चाहिए, आप ये सब स्टडी इसमें कर सकते हैं. फर्दर स्टडी ऑफ द एजुकेशनल फिलोसॉफी प्रोपाउंडेड बाय ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, आपका एमए एजुकेशन के फर्स्ट ईयर कोर्स में ये सब एक फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट हमने दिया है. ठीक है. उसमें आप पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ स्टडीज. इट मे बी idealistic schools of studies, it may be naturalistic schools of studies, it may be a pragmatic schools of studies. ठीक है. नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ स्टडीज नेचर के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, लर्नर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है. ये कहता है कि द लर्नर, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, ये कहता है कि लर्नर सब कुछ लेकर आता है. ओके. दे हैव द एबिलिटी. तो हमें भरोसा करना पड़ेगा लर्नर्स के ऊपर. और ये जो सराउंडिंग है, नेचुरल सराउंडिंग है, ये जो नेचर है, नेचर इज द बेस्ट टीचर. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो कंडक्ट ए स्टडी बेसिंग अपॉन ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट. आइडियलिस्टिक स्कूल्स कहता है कि आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज आर एवरीथिंग. ठीक है. तो आप गांधी जी का शिक्षा दर्शन आप देख लीजिए, आपका स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन देख लीजिए, प्लाटो का शिक्षा दर्शन आप देख लीजिए. आप देखेंगे मोस्टली दे हैव टॉक्ड अबाउट idealistic schools of thought. Their thinking process and their concept towards education is mostly idealistic in nature. Okay. But जब रूसो का हमने बात करेंगे, रूसो he is the propounder of the naturalistic schools of thought. So friends, जब फिलोसॉफिकल स्टडी हम करेंगे, इस स्टडी में ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो उसी के अनुसार उनका विचार क्या है, उसके अनुसार हम कैसे डिजाइन करें हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके ऊपर भी हम शोध कर सकते हैं. एंड फर्दर स्टडी ऑफ द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द करिकुलम. जो करिकुलम हमने डेवलप किया है, तो इसका फिलोसॉफिकल बेस क्या, वेदर वी हैव डेवलप्ड द करिकुलम एज पर द आइडियलिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट, और एज पर द नेचुरलिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट, और एज पर द प्रैग्मेटिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट. प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट मतलब आप देखेंगे चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. एवरी टाइम आवर सोसाइटी इज ए डायनामिक सोसाइटी. Every time you will find that the things are getting changing, okay, because of the development of science and technology, because of the development of new principles, new theories, new laws. So that's why nothing is static, everything is dynamic. So आपका जो pragmatic schools of thought ये कहता है कि everything is changing. So accordingly, our education system, we should develop the curriculum that we develop, that should provide scope to the learners to change themselves, scope to the learners to practice new things and to come forward with new innovations. Okay. तो इसके ऊपर भी हमने स्टडी कर सकते हैं. Then study of philosophical basis of instructional processes in teaching learning process
you see, we teach the students as per the behavioristic schools of you can say teaching and learning, or as per the behavioristic approaches of pedagogy, or as per the cognitivist approach of pedagogy, or as per the constructivist approach of pedagogy. तो यहाँ भी जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस हमारा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो है, हम क्या मेथड यूज करें, मैथमेटिक्स के लिए क्या मेथड टेक्निक है, साइंस के लिए कौन सा मेथड टेक्निक से अप्रोप्रिएट है, लैंग्वेज के लिए कौन सा है, इसके ऊपर भी एक स्टडी हम कर सकते हैं अंडर दिस फिलोसॉफिकल रिसर्च. देन फर्दर स्टडी ऑफ द फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द साइकोलॉजिकल थ्योरीज टू एजुकेशन. सो डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है, इट मे बी मोटिवेशन, इट मे बी पर्सनालिटी, इट मे बी एप्टीट्यूड, इट मे बी एटीट्यूड, इट मे बी क्रिएटिविटी, ठीक है, इट मे बी इंटेलिजेंस. तो जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, जो एजुकेशन में प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसी के ऊपर भी एक अध्ययन आप कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम समझने के लिए कोशिश करें कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी सपोज टू फॉलो फॉर कंडक्टिंग फिलोसॉफिकल रिसर्च. फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम और द रिसर्च प्रॉब्लम. सो हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिसर्च प्रॉब्लम. एक रिसर्च प्रॉब्लम हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. सो ज्यादातर हमारा जो रिसर्चर है, यह प्रश्न वो पूछते हैं कि सर फिलोसॉफिकल रिसर्च करने के लिए जो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है, जो टॉपिक है, वो कैसे होगा, ठीक है. आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, ठीक है. जरूर इस एग्जांपल को आप देखिए. ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, ठीक है. सेकंड देखिए, एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद. उपनिषद के हिसाब से, और उपनिषद क्या कहता है, व्हाट इज द एजुकेशनल फिलोसॉफी दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन उपनिषद. ओके, सो ये भी आप कह सकते हैं. Many a time we give example of Upanishad, we give example of Ramayana, we give examples of many other epics also. ठीक है. So what are the educational philosophy that has been discussed, that has been included in such documents, in such you can say the documents which has developed long before in the ancient time. ठीक है, उसी के ऊपर एक अध्ययन आप कर सकते हैं. The spiritual element in the educational philosophy of महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है, महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति जो विचार है, जो उनका स्पिरिचुअल एलिमेंट क्या था. ओके, स्पिरिचुअल एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है. और उसी प्रकार स्पिरिचुअल एलिमेंट की जगह में आप दूसरे एलिमेंट भी आप ले सकते हैं, सोशल एलिमेंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है. देन ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एज एन एजुकेशनिस्ट. स्टडी ऑफ श्री अरबिंदो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन. चाहिए श्री अरबिंदो हो, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर हो, उनका शिक्षा दर्शन कैसे था, ठीक है. करिकुलम कैसे, वो करिकुलम होना चाहिए, उनका विचार क्या था, उसके ऊपर एक स्टडी हम कर सकते हैं. देन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इन सांख्य योगा एंड गीता. गीता के अनुसार पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, और सांख्य योगा के अनुसार पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है. व्यक्तित्व, एक गुरु का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, एक शिष्य का व्यक्तित्व, एक डिसाइपल का व्यक्तित्व कैसे होनी चाहिए. तो एक स्टडी हम कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द डाटा व्हिच इज अवेलेबल with us, by analyzing the epics, by analyzing the beautiful document which is kept in different libraries. ठीक है. Then further, equality of educational opportunity, a philosophical study. This is the part of our constitution, equity and equality. ठीक है. समान, समता एवं समानता. तो शिक्षा में समता और समानता कैसे हमने अचीव किया है, how we have practiced different schemes in education across the country, in different states, and we have tried to achieve the unity among the diversities. We consider that diversities as our strength, then accordingly we have achieved the equity and equality. So here उसका जो एक दार्शनिक आधार क्या है, इक्विटी से हम क्या समझते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, उसी प्रकार इक्वालिटी का क्या कंसेप्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसे एड्रेस किया गया है. तो इसके ऊपर चाहे तो हम एक अध्ययन कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ टू कलेक्ट डाटा व्हेन वी कंडक्ट ए टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल स्टडी. सो फ्रेंड्स, हियर यू सी द नेचर ऑफ द डाटा दैट वी गेट इन ए फिलोसॉफिकल स्टडी, दैट मे बी
data from a primary source. By using the primary source we get data, and also by using the secondary source we also get data. Further I will discuss that what are the different primary sources and what are the different secondary sources. And mostly for philosophical study we do a type of लाइब्रेरी स्टडी, ठीक है, लाइब्रेरी हम जाते हैं बिकॉज हम जो डाटा अवेलेबल है उसी डाटा को मोस्टली हम यूज करके फिलोसॉफिकल स्टडी हम करते हैं, ठीक है। सो लाइब्रेरी स्टडी, ह्यूज लाइब्रेरी स्टडी हम करते हैं फिलोसॉफिकल स्टडी के लिए। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने कहा गांधी जी का शिक्षा दर्शन, सो वेयर टू गेट द डॉक्यूमेंट्स, you will find that many publications, Gandhiji's autobiography, even if the biography written on Gandhiji and many other books also. So where you will get it? You will get it in different libraries, in different national libraries, in different universities libraries, national institution libraries. So वही बैठ के आप ये अध्ययन कर सकते हैं। But here we face certain challenges for conducting the philosophical study, just like relevance of the data from the authentic sources, and genuineness of the sources of the data. जो डाटा हमें मिलता है whether that is relevant or not, क्या उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो ऑथेंटिक डाटा है, जो सोर्स हम डाटा ले रहे हैं क्या वो एक जेन्युइन सोर्स है। तो इसके ऊपर भी एक बार हमें विचार करना पड़ेगा कि जो डाटा हमें मिलता है whether that data is a perfect data or not for our research, ठीक है। चलिए ये आपका नेचर ऑफ डाटा एंड चैलेंजेस दैट वी फेस फॉर कंडक्टिंग फिलोसॉफिकल रिसर्च हमने डिस्कशन किया। एंड फर्दर कलेक्शन ऑफ डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा। ओके, सो हियर यू सी डाटा कलेक्शन वी यूज डिफरेंट टेक्निक, जस्ट लाइक लाइब्रेरी स्टडी, हम लाइब्रेरी जाएंगे, जो पुराना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है बिल्कुल उसे पढ़ेंगे। ऑटोबायोग्राफी मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो या अदर पब्लिकेशंस हो, including the journals, including the literature which is available, the contemporary literature which is available गांधी जी के समय में। और यदि गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है, if you are getting certain narration, if you are getting certain stories, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे पढ़ के डिड्यूस करेंगे, वहीं से उसे एनालिसिस करके बहुत सारी चीजें आप निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपका स्टडी का फाइंडिंग्स हो सकता है। देन अवेलेबल लिटरेचर, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट the literature may be available in the library and many a time in National Archive, and many a time you will find that this has been preserved in many institutions, okay, for the research purpose and for the readers purpose. So that also you can use. Books, journal, if you are getting the data, it may be in terms of a book, in forms of a book or in forms of a journal, that also you can use. Then transcriptions, you can also use the transcriptions. देन रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शंस, मतलब कुछ एक किसी का लेक्चर को ट्रांसक्रिप्ट करके वो क्या क्या बोले हैं उसे ट्रांसक्रिप्ट करके एक स्क्रिप्ट डेवलप किया गया है। देन फर्दर दैट हैज बीन टेकन जस्ट लाइक ए रिटन फॉर्म, ठीक है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो है इट मे बी इन मेनी वॉल्यूम्स, दैट ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट फॉर गेटिंग डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। देन द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल है म्यूजियम में, आर्काइव में, लाइब्रेरी में, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। देन डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, दीज आर द डिफरेंट डाटा कलेक्शन टेक्निक सोर्सेस दैट यू कैन यूज फॉर collecting data, for conducting your philosophical research. Then further we will discuss that classification and interpretation of the data. So how to analyze, how to interpret the data to reach at the findings. निष्कर्ष के पास पहुंचने के लिए हम डाटा को कैसे एनालिसिस करें, ठीक है। आप देखिए, क्लासिफाई डाटा इन डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स एज पर द रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपका रिसर्च क्वेश्चंस आप लिखे हैं, ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी आप स्टेट किए हैं, ठीक है। तो एज पर द रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो डाटा को ऑर्गेनाइज आपको करना पड़ेगा। जो स्टोरीज आपको मिला है, जो नरेशंस आपको मिला है, जो डिस्क्रिप्शंस आपको मिला है, डिफरेंट हेड और सब हेड में, डिफरेंट सेक्शन में आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा एज पर द ऑब्जेक्टिव्स। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कैन बी डन बाय डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, अप्राइजल, क्रॉस एग्जामिनेशन। जो डाटा को जब इंटरप्रिट करेंगे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन आप करेंगे, वेदर दिस इज द ऑथेंटिक डाटा और नॉट, वेदर दैट इज अ ट्रू डाटा और नॉट, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस वेरिफिकेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन आप करेंगे बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक। उसी डाटा के बारे में और किसी लिटरेचर में जिक्र है क्या, और किसी लिटरेचर में कहा गया क्या, ठीक है,
को रिलेट करके कंटेम्पोररी टाइम में और जो डिफरेंट लिटरेचर डेवलप हुआ है वो सभी को पढ़ के उसका ऑथेंटिसिटी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसे आप एग्जामिन कर सकते हैं. देन फॉर द लॉजिकल रीचिंग एट द कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडीज, देन यू हैव टू रीच एट द लॉजिकल एंड. ठीक है, आपका रीजनिंग, आपका एनालिटिकल स्किल, आपका सिंथेसिस स्किल ये यूज करके, ठीक है, आप एक लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे. दैट विल बी द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी. इट नीड्स एनालिटिकल एंड सिंथेसाइजिंग एबिलिटीज ऑफ द रिसर्चर. मैंने आपको कहा a researcher should have the analytical and synthesis skill. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then further what you have to do, you have to report the study, you have to prepare the report. So logical sequence required to writing the report, that as per the objectives, as per different sections and subsections, so how you have to arrange it, how you have to report it, because this is not a quantitative study. Quantitative study नहीं है कि उसका मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, टी टेस्ट निकाल दिया, कोरिलेशन आप निकाल दिया और बता दिया कि डिफरेंस है या नहीं है, या आपका कोरिलेशन है या नहीं है. बट हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप ए प्रॉपर नैरेटिव्स. ठीक है, एक विश्लेषण, एक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको डेवलप करना पड़ेगा. स्टोरी जैसे एक एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जो चीजें आपने, जो डाटा आप कलेक्ट किया, वो डाटा को बिल्कुल आप एक लूसिडली उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. सो दैट्स व्हाई सीक्वेंशियल यू हैव टू रिपोर्ट इट इन डिफरेंट हेड्स एंड सबहेड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. देन नीड्स क्लैरिटी एंड प्रिसिशन टू प्रेजेंट द रिजल्ट विथ क्लैरिटी, बाय विदाउट यूजिंग एनी jargon, by using very simple language you have to narrate it, because after all you are doing it for the readers. जो पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, आपका रिसर्च को कौन बेनिफिट्स देंगे, जो फर्दर रिसर्चर्स जो है, जो रीडर्स जो है, ऐसे आप लिखिए ताकि पढ़ के उनको समझ में आ जाए. देन अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस एंड कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेस नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में जो कोटेशंस आप लिए हैं डिफरेंट सोर्सेस से, यहाँ एज इट इज आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा विद द सोर्सेस, विद एक्नॉलेजमेंट एंड द सोर्सेस, कहां से आपने लिया है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, you have to report the philosophical study in this way. Then further we will discuss about the historical research. So historical research means it comes from the word history. History means the past. So here you have to study the past occurrences. So let us try to understand that how we can conduct an educational research, educational study by using the historical method. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप देखिए concept of historical research. So let me to discuss first the concept of historical research. Here you see in historical research what you do, we study the past occurrences, पहले से जो हो चुका है, that is in terms of जब educational study हमने करेंगे in terms of education, it will deal the educational discourses. आगे हम discussion करेंगे educational discourses क्या है, what are the different concept of education, areas of education that can be taken for using the historical method for conducting educational research. जैसे studying the specific occurrences in a specific context, just like school education, higher education, teacher education, technical education. So the development of school education in India, हम कह सकते हैं development of school education in India in the last 2 decades, in last 3 decades. ठीक है, एक टॉपिक हो सकता है. that will also a type of historical study. हम डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं, पास्ट ऑकरेंसेस हम स्टडी कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन. ठीक है, टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हमारा देश में कैसे हुआ है, ठीक है, इसका रूप कैसे कैसे प्रोग्राम हमने कैसे डेवलप किया. पहले टीचर एजुकेशन का स्वरूप क्या था, आज के दिन में स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यू कैन से दैट इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ फ्री इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और आज के दिन में जो एनईपी 2020 का बात हम करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हिच हैज नोटिफाइड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 जुलाई में जो नोटिफाई किया गया है. हम देखेंगे टीचर एजुकेशन का कंसेप्ट, डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस क्या कहा था, और एनईपी 2020 टीचर एजुकेशन को कैसे कंसेप्चुअलाइज कर रहा है. ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक हिस्टोरिकल अध्ययन हम कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, हम कैसे धीरे धीरे कैसे हम एक विकास की गति में जा रहे हैं. सो एजुकेशन का एक थीम को लेकर आप कर सकते हैं. नेक्स्ट,
causal relationship between the past happenings with the present practices. Okay, तो पहले क्या सब हुआ है, past happenings with the present practices, and what is the causal relationship, cause and effect relationships. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पास्ट में जो हुआ है प्रेजेंट को प्लान करने के लिए क्या मदद किया है. ठीक है, सो दैट ऑल्सो वी कैन कंडक्ट ए स्टडी. स्टडिंग द पास्ट हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डायनामिक्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू direct us for future planning. So friends, we learn many things from the past. You just ask yourself that your experiences, the experiences that you are getting, your experiences is also, you can say you are learning many things from your experiences. तो आपका experiences बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है और आप आपका एक्सपीरियंस को लेकर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अच्छा करने के लिए आप कोशिश करते हैं. तो यही सब कंसेप्ट है जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च जब एजुकेशन में हम करेंगे, हिस्टोरिकल मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसका मेजर कंसेप्ट यही है. सो नाउ लेट अस फोकस अपॉन द डिफरेंट एरियाज एंड स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. जब हिस्टोरिकल रिसर्च हम करेंगे एजुकेशन एरियाज में, डिफरेंट ब्रांचेस में, तो हम क्या क्या एरिया और कहाँ से हम टॉपिक ले सकते हैं. जस्ट लाइक जनरल एजुकेशनल हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. The history of education in India, I have already said that the concept of education at the ancient period of time, then medieval, then Buddhist, then medieval, then British, that means in the modern time of education, British and after independence. ठीक है, तो जनरल एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. देन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल लेजिस्लेशन. सो एजुकेशनल लेजिस्लेशन क्या होता है. सो नाउ यू सी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RT एक्ट 2009. सो नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर इसे अभी दे दिया गया है. ये राइट है, चिल्ड्रन का एक राइट है. स्टेट एंड कंट्री विल नॉट डिनाई टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या हिस्ट्री है, मैं यदि आपको कहूंगा जेनेसिस ऑफ एजुकेशन एज ए राइट. ठीक है, इसका क्या जेनेसिस है, क्या ओवरनाइट डेवलप हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट? नहीं. सो पहले आर्टिकल 45 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था. आप देखेंगे एक बहुत लंबा जर्नी इसका है. ठीक है, इसके ऊपर लड़ाई मतलब इसके ऊपर विमर्श किया गया है, इसके ऊपर कमिटीज, कमीशंस ने एट डिफरेंट टाइम दे हैव आल्सो मेंशन्ड, दे हैव आल्सो recommended that primary education should be universalized and it should be for all. Okay, it should be a fundamental right. And finally in the year 2009, that means this is implemented in this country that elementary education is a fundamental right, and it was implemented on 1st April 2010. ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी एजुकेशन का जो लेजिस्लेशन है इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है. देन हिस्टोरिकल biography of contributions in the field of education. ठीक है, historical biography of different contributors. ठीक है, मे बी आई हैव ऑलरेडी सेड दैट गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, उनके ऊपर भी हमने स्टडी कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो ए टाइप ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी. देन इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री of education, like primary education, development of primary education in a country, development of secondary education in a country, higher education, distance education, non-formal education, which is called as the alternative education. ठीक है, just like distance education system. So what is the history of it? What is the history of the open and distance learning system? अभी हम ऑनलाइन का बात करते हैं, पहले डिस्टेंस एजुकेशन का बात करते थे, देन आफ्टर हम ODL का बात करते हैं, हम ब्लेंडेड लर्निंग का बात करते हैं. सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इट? तो इसके ऊपर भी अध्ययन हो सकता है. दिस इज ऑल्सो द एरिया. देन एडल्ट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इज ऑल्सो अनदर एरिया, हैव ऑलरेडी सेड. देन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसर्निंग द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी. सो फ्रेंड्स, फॉर कंडक्टिंग ए बेटर educational study by using historical method, the researcher should have idea upon the sociology, anthropology, literature and technology, because in historical study, when we analyze the past, when we study the past is not all about based upon the education. So when we will study education, then definitely the cultural history will come to the context. We have to understand the society, we have to understand the contemporary community, we have to understand the anthropology.
We have to understand the language and literature being used at that time, at the same time the technology, how the teaching learning process was done at a time. Then history of educational planning and policy formulation. So planning कैसे different committees and commissions develop हुआ है different time में, ठीक है, उसका क्या history है, कैसे ये डेवलप किया, कैसे रेकमेंड किया गया, नया चीजें, नया इनोवेशंस कैसे इस देश को आया, इसके ऊपर भी हमने अध्ययन कर सकते हैं. Then historical critics of education. So many a time you will find that the critics means I am not saying here in a negative term, rather constructive criticism. That means for our progress, for our growth, there is the need for criticizing. Criticizing means just to analyzing the things and come forward with the points, with the feedbacks, and to further implement those feedbacks for modifying, for developing our system. So that's why these are the important areas. From there we can select a topic for conducting our study. Then further, nature of data in historical research. जब एक ऐतिहासिक अध्ययन हम करते हैं तो डाटा हमें कहां से प्राप्त होता है. सो फ्रेंड्स, दो प्रकार मेथड हम यहाँ यूज करते हैं कि प्राइमरी सोर्स से डाटा हमें मिलता है और एक सेकेंडरी सोर्स से डाटा हमें मिलता है. हम अभी डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, और हिस्टोरिकल अध्ययन के लिए प्राइमरी सोर्स से क्या क्या डाटा हमें प्राप्त कर सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स से क्या क्या डाटा हम प्राप्त कर सकते हैं. You see, primary source provides the first-hand information about the past events. Okay, first-hand information about the past events. जो प्राइमरी सोर्स मतलब डायरेक्टली जो डाटा हमें मिल जाता है, just like a type of autobiography, just like direct observation, reporting and recording of experiences are called as primary sources. जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, कुछ प्राइमरी जो जैसे कि गांधी जी ने कुछ बोला है आपको मिल गया, बिल्कुल उनका डायरेक्ट राइटिंग लेटर आपको मिल गया, उनका स्क्रिप्ट आपको मिल गया, ठीक है, हम कहेंगे. या ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, ही हैज रिटन इट. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी अदर एजुकेशनिस्ट, ठीक है. तो प्राइमरी सोर्स से हमें मिला, उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है. द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज डेवलप्ड दिस मटेरियल एंड दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड. It may be in any place, may be in museum, may be in library, in archive, ठीक है. तो वो प्राइमरी सोर्स है. Then further, personal testimony, personal primary sources like a personal observation in events in which he or she participated in the past. यदि ऐसे कुछ पॉपुलेशन, ऐसे कुछ लोग आपको मिल गए जो एक्सपीरियंस किए हैं. आप देखिए, मैं कहूंगा इंडिपेंडेंस के टाइम में, The war of Indian independence, ठीक है, the revolution of Indian independence, आपको यदि ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो उस टाइम में पार्टिसिपेट किए हैं और अभी भी वो लोग जीवित है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किए हैं, तो यू कैन ऑल्सो टॉक विद देम, ठीक है, जो वो बिल्कुल उस इंसिडेंट को बिल्कुल देखा है, ठीक है, या एक्सपीरियंस भी किए हैं. फ्रीडम फाइटर यदि आपको मिलते हैं, देन इफ यू टेक ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, then you can say that you are getting data by using the primary sources. Then further, physical artifacts, जो कलाकृतियां अभी भी मौजूद है, जो हिस्ट्री म्यूजियम में है या हिस्ट्री बुक में भी आपको ये सब मिल रहा होगा. आर्टिफैक्ट्स, देन हिस्टोरिकल रिमेन्स, रिलिक्स, रिमेन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, नालंदा, तक्षशिला, ठीक है. The institutions has ruined, but you will find that the remains of the institution आर स्टिल देयर. ये हमें दिखाता है कि हमारा इतिहास कितने उस टाइम में कितने प्रबल था, और ये हाउ द वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स वेर कमिंग, स्कॉलर्स वेर कमिंग हियर टू स्टडी इन नालंदा एंड तक्षशिला, ठीक है. सो दैट्स व्हाई प्राइमरी सोर्सेस से डाटा जो आपको मिलता है, आपको अध्ययन इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. देन मैकेनिकल आर्टिफैक्ट्स जस्ट लाइक फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स, ऑडियो कैसेट्स, फोटोग्राफ्स, ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया, कुछ ऑडियो वीडियो फॉर्म में यदि कुछ चीजें आपको मिलता है, दैट ऑल्सो प्रूव एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर कंडक्टिंग योर स्टडी. देन फर्दर, अनदर प्राइमरी सोर्स दैट्स कॉल्ड एज द वर्बल टेस्टिमनी और records written by actual participants or observers in the form of constitutions. The Constitution of India or the Constitution of any country, that's the primary document, you can say. Then charters, different act, court decisions are also the primary source. Then official minutes and records. So after conducting a minutes, जो
मीटिंग, उसका जो मिनट्स है आप देखेंगे अभी भी नेशनल आर्काइव में जो पहले जो कुछ मीटिंग ऐसे हुआ है, बड़े बड़े नेशनल लेवल में कुछ इवेंट्स हुआ है, उसका मिनट्स जो है क्या डिसीजन हुआ था वो बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा गया है. सो यू कैन से दैट these are also the primary source for getting data for conducting research by using the historical method. Then autobiographies, letters, then contracts, deeds, wills, then permits, license, certificates, bills received. ये सभी चीजें जो है एक प्राइमरी सोर्स है. Then further we can say magazines and newspapers, accounts, maps, pictures, paintings, books. So friends, historical research थोड़ा डेप्थनेस जिसका है वो कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आता है. दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. फर्दर नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, डाटा दैट विल गेट बाय यूजिंग द सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डाटा इंक्लूड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट के बारे में यदि कोई लिखा है एंड दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन ए फॉर्म ऑफ जर्नल, इन ए फॉर्म ऑफ article, then you can say that is a secondary data. महात्मा गांधी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यदि कोई कुछ लिखा है, ठीक है, हम कहेंगे कि दैट इज द सेकेंडरी डाटा, दैट्स नॉट द प्राइमरी डाटा. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द पर्सन हु सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इज नाइदर ए पार्टिसिपेंट नॉर एन आई विटनेस ऑफ द इवेंट. वो इवेंट का आई विटनेस नहीं था, पार्टिसिपेंट नहीं था, पर वो लिखा है, किसी के बारे में कुछ लिखा है. ठीक है, items of this type of can be written materials like newspaper articles. We are also writing an article in a newspaper. ठीक है, वो that's a secondary data you can say. Then interviews other than the direct participant. Direct participant का इंटरव्यू आप नहीं कर रहे हैं, पर दूसरे का कुछ इंटरव्यू हम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं. ठीक है, किसी के विजन के बारे में. Then articles, magazines, books, research reports जो पब्लिश हुआ है, these are also the example of the secondary data. But here in note I have mentioned here primary source of data are given more priority than the secondary source of data, especially for conducting historical research. Then next is evaluate historical data. Historical data को हमने कैसे evaluate करेंगे? So friends, let me to say that data को evaluate करना, justify करना, analyze करना, interpret करना is the very important task so far as the historical method is concerned for conducting educational research. So friends, let us try to understand कि historical research में जो data आएगा उसे हम कैसे interpret करें. The process of getting validity, reliability and relevance of historical data are done by external criticism and internal criticism. External criticism is called as lower criticism and internal criticism is called as the higher level criticism. ये आंतरिक एंड बाह्य क्रिटिसिज्म जो है हम कोशिश करेंगे समझने के लिए. व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म. सो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मीन्स इट इज डन टू नो द जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्सेस ऑफ द डाटा. जो सोर्सेस से डाटा आपको मिला वो सोर्सेस ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, जेन्युइन सोर्स है कि नहीं, whether that is the website, whether that is the national website or not, whether that is the website of the national institution or the not, whether that is the real website of the archive or not. ठीक है, तो इसका जो जेन्युइननेस है, इसका जो ऑथेंटिसिटी है, जो सोर्सेस से डाटा आप कलेक्ट किए हैं फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम लाइब्रेरी, सो यू हैव टू जस्टिफाई इट. देन फर्दर रिसर्चर शुड हैव ए गुड क्रोनोलॉजिकल सेंस ऑफ टाइम. ठीक है, सो हिस्टोरिकल स्टडी करने के लिए जो रिसर्चर है, टाइम सेंस उनका ठीक होनी चाहिए कि कितने साल पहले ये चीजें हुआ था, 200 years बिफोर, 500 years बिफोर, 1000 years बिफोर. ये सब चीजें एक टाइम सेंस रिसर्चर का अच्छा होना चाहिए. एंड द रिसर्चर शुड बी ए वर्साटाइल इंटेलेक्ट. एक बुद्धिमान व्यक्ति होनी चाहिए. रिसर्च का कंसेप्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च का कंसेप्ट एंड प्रोसेस उनको समझ में आना चाहिए. देन गुड कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड प्लेंटी ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस. सो हियर पेशेंस चाहिए रिसर्चर को, परसिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसे एक स्टैटिस्टिक्स यूज करके उसका जस्ट डिफरेंस और कोरिलेशन प्राप्त में खत्म नहीं होता. ठीक है, आपको जेन्युइनली, डेडिकेटेडली आपको काम करना पड़ेगा. सालों से आपको डाटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा. कंटेम्पररी रेपुटेशन वो डाटा का है कि नहीं, मतलब जिस टाइम का वो इवेंट है
उस टाइम में उसी इंसिडेंट के बारे में, उसी इवेंट के बारे में, वेदर दिस हैज बीन मेंशन्ड इन एनी अदर कंटेम्पररी लिटरेचर और नॉट, ठीक है, क्या इसे जिक्र किया गया है और किसी लिटरेचर में, ठीक है। यदि जिक्र किया गया है, यहीं से एक एविडेंस हमें मिलता है, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हम इसे करते हैं, यस that this document has been developed or that incident had been occurred at that time because that has been mentioned in many literature, in many contemporary literature, ठीक है, जो लिटरेचर उस टाइम में डेवलप हुआ है। देन कंसिस्टेंट रेपुटेशन, उसका रेपुटेशन है क्या नहीं, क्या लोग उसे ऐसे देखा और उसके बाद उसे छोड़ दिया या उसे रिलाई, उसके ऊपर रिलाई किया, तो उसका रेपुटेशन के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। Then the literary sources can be verified against the authorship of the documents, उसका अथर कौन है, सिग्नेचर, टेस्टिंग सिग्नेचर, हम उसका सिग्नेचर भी टेस्ट कर सकते हैं वेदर ये जेन्युइन है या नहीं है, हैंडराइटिंग भी हम टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टेस्ट हम कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड लैंग्वेज हमने टेस्ट कर सकते हैं टू एस्टेब्लिश द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। द मटेरियल सोर्सेस कैन बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट लाइक वेरिफिकेशन ऑफ इंक, पेंट, पेपर, क्लॉथ, मेटल, वुड एटसेट्रा। यदि वुड मिला है उसको आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इंक, पेंट, पेपर, ये सब भी आप कर सकते हैं, ताकि एक आइडिया मिलेगा, इसका टाइम सेंस के बारे में आइडिया मिलेगा, इसका ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको आइडिया मिलेगा। फर्दर इंटरनल क्रिटिसिज्म आपको ये क्या कहता है, इट इज डन टू नो द जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी एंड वर्थ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डाटा। एक तो हमने सोर्स देखा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, इंटरनल क्रिटिसिज्म हम देखेंगे जो कंटेंट डेवलप किया गया उसका जेन्युइननेस हम देखेंगे, वो कंटेंट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द इंटरनल क्रिटिसिज्म। ओके, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल कंपेयर विद अदर कंटेम्पररी लिटरेचर अवेलेबल। तो ये डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है उसी कंटेंट क्या और किसी डॉक्यूमेंट में जो उस टाइम में डेवलप हुआ है, यदि है तो उसे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई विल कंप्लीट इट within another 10 minutes, so another few slides are there, so we'll reach at the end after 5-7 minutes or maximum 10 minutes. So we have to analyze, we have to interpret, we have to internally criticize the data, we have to develop a type of validity here, that's called as the content validity, and content validity is possible when we analyze the content, ठीक है, जब content को आप analysis करेंगे। Even the part literature of a genuine author will be compared with other document, either the entire document, the entire content of the document or the part content of the document, ठीक है। Then it can be done in 2 steps, 2 स्टेप में इसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है to compare the information derived through 2 independent sources, 2 अलग अलग सोर्सेस से जो डाटा आया है, जो रिसोर्सेस आपको मिला है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, yes there is the consistency between the content of the literature. This is the first step. And second step, to match information with the information already available with reliable sources. So different reliable sources में जो डाटा अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देखेंगे क्या सही से यही इंफॉर्मेशन इसमें है। तो by using internal criticism and external criticism you can authenticate the data. So friends, let me to say, for conducting historical research, historical study, you have to criticize the data, you have to establish the reliability and validity of the data by doing the internal criticism and the external criticism. External criticism source के ऊपर है और internal criticism content analysis के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next we'll discuss about what are the different steps we are supposed to use for conducting historical study. Just like determining the problem, first we have to select a problem, then specification of the area and population of the data, कहाँ से डाटा हमें प्राप्त होगा, then data collection, how to collect data, then organization of the data for analyzing the data, how to organize it, then interpretation of the data, डाटा को इंटरप्रेट हमने कैसे करें, then report writing, रिपोर्ट भी हमने कैसे लिखे। So let us now focus upon the first point, that is the determining the problem. Historical studies concerning current social issues such as education of deprived communities, women education, eradication of illiteracy. हम कहते हैं किसी एक रीजन में क्यों इलिटरेट पर्सन ज्यादा है। यदि मैं कहूंगा across the country India, you will find that the situation of all the states so far as the educational situation, educational status of all the state is not equal.
व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, ठीक है। एक हिस्टोरिकल स्टडी हम कर सकते हैं, उनका कल्चर स्टडी हम करेंगे, लैंग्वेज स्टडी हमने करेंगे, और व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर, उसका फैक्टराइजेशन हमने करेंगे, निकालेंगे, वहां से फैक्टर्स डिड्यूस करेंगे। व्हाई किसी एक एरिया में बहुत अच्छा लिटरेट परसेंटेज आर वेरी हाई, पीपल आर एजुकेटेड, बट एट द अदर साइड ऑफ द कंट्री देयर इज अनदर स्टोरी। ओके, तो क्यों है, इसके ऊपर एक स्टडी हम कर सकते हैं। जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, इट में भी माइनॉरिटीज, इट में भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसके ऊपर एक स्टडी भी हमने कर सकते हैं। वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन के ऊपर भी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी एक स्टडी हम कर सकते हैं। हिस्ट्रीज ऑफ specific individuals or histories of specific educational institutions. Many institutions, you can take the example of more than hundreds years of institutions which has established during British time. Okay, और इससे पुराना भी जो इंस्टीट्यूशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो सभी इंस्टीट्यूशन का स्टडी आप कर सकते हैं। लेट मी टू गिव द एग्जांपल ऑफ लेट रेवेन्सा कॉलेज, और नाउ टुडे इट्स एन यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में आपको मिल जाएगा, कोलकाता में आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इनके ऊपर भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी आप एक हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं। देन हिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशनल movements. So what are the different educational movements that have been taken place, just like to make education as a fundamental right which has already implemented, which has already practiced, ठीक है। तो इस प्रकार स्टडी को लेकर आप एक हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं। Then further interpretation of ideas or events which had previously seemed unrelated, liking educational development with socio-economic development of a region or the community. Historical, I have already said that in a particular region educationally क्यों एक सेक्शन नीचे है और एक सेक्शन आगे है, तो इसके ऊपर भी हमने स्टडी कर सकते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कैसे ये डेवलप हुआ है। आज का जो फॉर्म है एज पर NEP 2020, सो नाउ वी आर टॉकिंग द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी द 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये कैसे इस सिस्टम तक आया, पहले हम प्रैक्टिस करते थे, तो जब इसके ऊपर एक स्टडी करेंगे इसको पता चलेगा। Then educational committees and commissions, the committees and commissions that have been developed at a time after independence, even before independence, एक स्टडी हम कर सकते हैं, so that एजुकेशन का डेवलपमेंट के बारे में भी हमें पता चले। Then next point is specification of area and the population. ये जो स्टडी करेंगे इसका एरिया, whether it will cover the whole India or whether it will cover a particular state or a small area, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक इसका एरिया भी हमने स्पेसिफिक करेंगे। जस्ट लाइक आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल हियर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश सिंस 2000 टू 2020। मध्य प्रदेश में सेकेंडरी एजुकेशन का विकास कैसे हुआ है, टू डिकेड का, 2000 टू 2020, ठीक है, इन लास्ट 20 ईयर्स में। हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश विथ स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशनल पॉलिसी एंड फाइनेंस 2020 टू 2020, ठीक है। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन एज राइट फॉर द चिल्ड्रन इन इंडिया, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसी एरियाज को लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन, रिसर्चर्स शुड टेक a decision that the data for his or her research will be available through different sources, just like primary sources, secondary sources, interview and observation. I have already discussed that what are the data, how you will get the data by using the primary sources and by secondary sources. And in historical research you can also take the interview and observation. You can go to a site, you can observe the situation. It may be Nalanda, it may be Takshashila. The ruins are there, the remains are also there. You can also observe it. You can also take the interview of the direct person, those are involved in different events, in different situations. Okay, उनका इंटरव्यू भी आप कर सकते हैं। या you can also take the interviews of the historians, of the educationist, of the learned person, of the intellect, ठीक है, इनका भी इंटरव्यू करके आप स्टडी कर सकते हैं। Then further, how to organize the data. So data organization are done to get a historic picture of the problem. Organize the data in different heads and subheads, different headings as per the objectives. डाटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स से, बिकॉज आपको
descriptively रिजल्ट डिड्यूस आपको करना है, रिजल्ट पता करना है. सो दैट्स वाई प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको डाटा ऑर्गेनाइज करके आपको उसे एनालिसिस करके लॉजिकली एनालिसिस करके आपको फाइंडिंग्स तक पहुंचना है. ठीक है, दिस इज एज पर द रिसर्च क्वेश्चंस एंड द ऑब्जेक्टिव. देन आफ्टर केयरफुली scrutinizing the data, the researcher prepares it for interpretation and getting the result. Then further you have to interpret it, you have to discuss it, you have to discuss critically, you have to develop a critical understanding, and critically you have to analyze the data, because already you have done the internal and external criticism, you have authenticated the data, and further from this data you have to reach certain points, that points of the result. Next, interpretation of data and report writing. So how you will interpret the data? This is the most important work for interpreting the data so far as historical research is concerned. So analyzing different historical events, huge documents and policies developed and implemented over a time and reach at the findings is not an easy task. I have already said that you have huge data in such a volume of data. So that's why you have to make it coding. Proper coding. That coding means you have to find out certain important words from your objectives, that accordingly that in the documents what are the different things that has been mentioned. Then accordingly you have to read it, you have to write it, the important points. Then accordingly you have to make you have to classify it in a similar way as per the objectives and questions. Then from there you have to develop a type of narration. Then a sound knowledge of researcher. I have already said that the researcher who has a good knowledge about the history, about the sociology of the community, of the society, okay, so they can do a better historical study. So that's why knowledge about the psychology, sociology, then political science, economics, philosophy, geography, educational management and educational technology can better conduct a type of historical study. Then getting data and its interpretation for reaching the result goes together. So here you see, whenever you will get data, when we will read the data, at the same time we also analyze the data. ठीक है, जब हम पढ़ते हैं उस टाइम हम एनालिसिस भी करते जाते हैं, क्योंकि जो डाटा हमें मिलता है ये क्वांटिफाइड डाटा नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव डाटा आपको मिलता है. So friends, today we discussed about the philosophical and historical method that we use for conducting educational research. Just to recapitulate, we discussed the concept of philosophical research, the concept of historical research. Then we discussed about that how to collect data and what type of tools that we supposed to use. It may be for getting primary data or for getting the secondary data, and further especially for the you can say for historical research, how data criticism can be done. It may be internal criticism or it may be external criticism for establishing the reliability and validity. Okay, ये सभी हमने डिस्कशन किया और फिर फर्दर एक प्रोसेस, एक स्टेप एडॉप्ट करके कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर हमें विस्तार रूप में चर्चा किया. और आई एम श्योर दैट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड to conduct a study, historical or philosophical study for your MA education dissertation or for your research, you can do it. And for more information, for more knowledge, for more understanding, definitely you visit MES 016, read this course MES 016 educational research, and definitely go through the handbooks of dissertation which is available in eGyan course. So friends, for further queries you can write a mail to me, niradhar@ignou.ac.in. You can also make me a phone call. My intercom is 2994. Presently I am not available, I am at home. When I will come to office, then you can also make me a telephone call. You can visit my Facebook page, my YouTube channel, at the same time my Twitter handle. You will find many good videos, hundreds of good videos on different topics of education, educational research, and also other themes of education that will help you for your study. So thank you. Again, we will meet in another session. Thank you.